चलो आज एक कहानी के बारे में बात करते हैं, वो भी मेरी कहानी, एंड दैट टू with BMW. In 2008, I went to Delhi with my father, and that time Honda City was ruling the Indian sedan market. So that time I had seen a long black car. तभी मैंने differentiate कर लिया था कि this is not a normal car. So I asked my father, and he told me about this car and the story behind it and the premiumness of this car. Just after 5 years, in 2023, in my college, I have seen the BMW, and that too in a white color. So जब भी मैंने वो कार को देखा तो मैंने सोचा कि इसके साथ एक फ़ोटो तो बनता है. So this is the exactly the photo is, and that was me in 2013, and yeah, with a BMW of course in my college. So by that time I had a little idea about the car. Obviously I was not aware of the model number, the feature, or maybe the driving ergonomics and all that. I had no idea what this car is all about and how this car and everything. But I know that it's an expensive car, of course, in India, and obviously that by that time it was costing around 35 to 40 lakh. Okay, and so right after 10 years I have an opportunity to ride a BMW. So this is the first time I am driving a premium car. So I will definitely share my experience with you guys. Okay. So this is an emotional story with BMW and me. So, but whenever you are buying a new car, so be it BMW or Mercedes, Audi or Hyundai, Honda, Tata, Maruti or whatever. So whenever you are buying a car, it will be a mixture of emotion and as well as a practicality. So how practical it is to take an entry-level BMW car, and that is the BMW Grand Coupe in diesel variant, I'm gonna share with this video. Enjoy the cinematic shots of this car. Hello guys, so बहुत होगी story and cinematic shots. Now back into the business. कैसे है ये गाड़ी, और is this really justified to take this car in this price bracket, or how practical it is in a daily to daily life. Start करते हैं price के साथ. So the car which I'm driving right now, it is costing around 45.50 lakh, एक showroom कोलकाता. So this is the BMW 2 Series 220D M Sport diesel variant. So to talk about the variants, so this car is having 3 petrol variants, that is 220i M Sport, then 220i M Sport Pro, then 220i M Performance. And in diesel you will get only one variant, and which is I am driving right now, and that is 220M Sport. हालांकि you will हालांकि you all know, as per the Indian government policy, car makers should reduce making diesel cars, but still I am driving the diesel variant, as the fun I am getting out of the diesel engine in BMW you will hardly get it in petrol cars. But anyways, I am talking about the fun, so definitely I need to discuss about the power figure. So this car is having 2 liter of diesel engine which is producing 187.74 bhp of maximum power at 4000 rpm and 400 newton meter of maximum torque at 1750 to 2500 rpm. So ये गाड़ी में आपको मिलता है 8 speed automatic gearbox with twin turbocharger. So और ये गाड़ी BMW M series का है. So obviously M stands for motorsport in BMW. So obviously ये कार में भी आपको sports character मिल जाएंगे. So like sporty seat, frameless doors, and of course M badge in steering, and 17-inch wheels with a low flat profile tire. So जब पावर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ब्रेक भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि
इस गाड़ी का ब्रेक मुझे ज़बरदस्त लगा। जस्ट हल्का पंजा से पूरा गाड़ी ही रुक जा रही है। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि BMW का ब्रेक हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। एक्चुअली मैंने BMW का और एक गाड़ी चलाया जिसका नाम है X1। ओके, उसका भी ब्रेक मुझे ज़बरदस्त लगा। इवन आई हैव रिडन BMW S1000 RR विच इज़ अ बाइक, एंड उसका भी ब्रेक लाजवाब है। सो व्हाइल डिस्कसिंग द मोटरस्पोर्ट आई टॉक्ड अबाउट द स्पोर्टी सीट्स। So the seats are little hard but it grabs you so well that आपको एक अलग सा confidence देती है while you are driving the car in highway, और suppose if you are taking a U-turn और एक sharp turn में भी आपको अलग सा confidence देता है। So in driver and co-driver seat you will get extended under thigh support, but it is manual operated. So let me tell you one thing, that it is entry level BMW car. So obviously electronic operated under thigh support extender, obviously you will not get it, right? But electronic seat adjustment you will get in this car, and that for the driver, and obviously you will get the memory function seat as well. But I'm surprised in one thing, and that is the ventilated seats. Why BMW? I don't know why BMW is not giving ventilated seats in this car. So it is a little bit surprising me. But let me tell you the air conditioning of this car. So it is too good. Okay. And obviously it is a feature loaded car. So obviously gesture sensor, the big display, panoramic sunroof, and everything you will get in this car. Okay. But the one thing which is disappointing me, because this car is not having any ventilated seats. Yaar, BMW, please give it in this car as well. I don't know whether it is cost cutting or not, but yes, in this car it is not there. Now I'm little bit disappointed as well for the rear seat comfort. अगर आपका हाइट 6 फीट से ज़्यादा है देन आपको नी रूम एंड हेड रूम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका स्लोप जो है ये थोड़ा सा, ये कूपे कार है, सो इसका जो स्लोप है उतना ज़्यादा एक्चुअली इसका स्लोप के चलते आपको ज़्यादा हेड रूम आपको नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपको ज़्यादा नी रूम और हेड रूम चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्विच टू BMW 3 सीरीज़, जिसका लेंथ इस कार से थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको एक्स्ट्रा रूम भी मिल जाएगा। सो नाउ बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स की। सो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है जो मैं खुल के बता सकता हूँ। सो जब आप BMW चलाओगे देन यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट आपको मिलेगा परफॉर्मेंस एंड फीचर भर भर के। सो कुछ हद तक इस गाड़ी में भी आपको वो सारे चीज़ मिल जाएगा। So BMW claims that this car can reach up to 100 km/h at minimum 7.1 second. So इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलता है because of the low flat tire के चलते, एंड ऑब्वियसली यू आर ड्राइविंग अ सीडान कार, तो सीडान में आपको एक स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इवन आई हैव सीन इन X1 ऑल्सो यू विल गेट अ ग्रेट स्टेबिलिटी। बट जैसा मैंने कहा था कि आपको एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है इस गाड़ी में, बट ऑब्वियसली लो फ्लैट टायर में एक प्रॉब्लम भी है, एंड दैट इज़ इस गाड़ी में आपको जब भी इस गाड़ी को आप गड्ढे के अंदर से लेके जाओगे तो यू कैन लिटरली फील इट इन द स्टीयरिंग एंड द सीट्स। सो इस गाड़ी का सस्पेंशन भी थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम ड्राइविंग द फ्रंट व्हील ड्राइव कार। सो रोड पे अगर कोई भी एंडुलेशंस आते हैं तो इट विल डायरेक्टली transmitted into the steering, and as a result what happen, you need to hold the steering so tightly, otherwise क्या होगा, गाड़ी इधर उधर भाग जाएगी। सो बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है कि इस गाड़ी को बोलते हैं कि ये एक एक्चुअली फ्रंट व्हील ड्राइव है और इट इज़ अ कॉस्ट कटिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसका जो कंपटीशन में जो आता है कि इसका जो मर्सिडीज़ में या ऑडी में उसमें भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव भी मिल जाता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करेंगे तो मर्सिडीज़ बेंज एंड ऑडी से ये कहीं गुना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऑब्वियसली।
एंड अगर आपको मैं बोलूँगा कि हाँ, अगर आप जाना चाहते हो कि रियर व्हील ड्राइव का मज़ा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आई थिंक आई विल सजेस्ट यू टू गो विद BMW 3 सीरीज़, ठीक है। बट हालांकि BMW बहुत हद तक इसको मैनेज करने का कोशिश किया है ताकि आपको ये समझ में ना आए, एंड हालांकि बहुत हद तक आपको ये समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप BMW चला रहे हो तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा, ओके। बट अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे, अगर आपने 3 सीरीज़ का BMW चलाया या X1 चलाया तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है। सो दैट हाउ इट इज़। सो अभी जब देख रहे हो कि मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ एक फ्लाईओवर के ऊपर, सो बीच बीच में जो एक छोटा छोटा सा जो एंडुलेशंस आ रहे हैं वो कम्प्लीटली मुझे फील हो रहा है स्टीयरिंग के अंदर। तो आप लाइट वे में स्टीयरिंग को नहीं पकड़ सकते हो, सो ऑब्वियसली यू नीड टू ग्रैब द स्टीयरिंग वेरी टाइटली, ओके। सो नाउ बहुत बात की है मैंने स्टीयरिंग की, तो ऑब्वियसली आई नीड टू टेल यू कि स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है। स्टीयरिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड लगा, एंड जब भी आप गाड़ी को चलाओगे एक लो स्पीड में तो स्टीयरिंग को आप इजीली मूव कर पाओगे, एंड ऑब्वियसली इट्स एन एम स्पोर्ट कार, सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फॉल्स मूवमेंट, एंड आप थोड़ा सा भी स्टीयरिंग घुमाओगे तो गाड़ी पूरा के पूरा घूम जाएगी, ठीक है। बट जब भी आप इसको अगर चलाओगे एम सीरीज़ पे, अगर आप इसको चलाओगे स्पोर्ट्स सीरीज़ पे, अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो ऑब्वियसली ये गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा भारी हो जाती है, एंड ऑब्वियसली अगर एक हाई स्पीड में एक भारी स्टीयरिंग का ज़रूरत भी है आपको। सो जब मैं टायर की बात कर रहा था, सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट यू विल गेट 225/45 R17 सेक्शन ऑफ टायर। आप इसको अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो आई विल रिकमेंड यू टू गो विद R16 टायर, सो उसमें आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि गाड़ी को मैंने बहुत अच्छे से चलाया, एंड गाड़ी इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा यार। एंड ऑब्वियसली ये कार टेक लोडेड है, तो आपको इस कार में भी जेस्चर सेंसर मिलेगा, एंड ऑब्वियसली इट्स अ जर्मन कार, तो इसका जो इंडिकेटर है तो वो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, ये राइट साइड में आपको नहीं मिलने वाला है, हालांकि अभी आप देख रहे हो। सो आई एम ड्राइविंग दिस कार इन अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एज वेल, क्योंकि this car is mainly good for actually daily to daily use, okay। अगर आप एक ऑफिस गोइंग हो या अगर आप चाहते हो कि आपको गाड़ी का डेली टू डेली यूज़ है तो ये गाड़ी दिस इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट कार फॉर यू। अगर मैं डेली टू डेली यूज़ की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड टू टॉक अबाउट द माइलेज। हालांकि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस कार इज़ कॉस्टिंग अराउंड 45.50 लाख। तो जो कार अभी मैं चला रहा हूँ वो है डीजल, तो आपको एक्चुअली MID में मुझे दिखा रहा है, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। MID में मुझे ये गाड़ी दिखा रहा था लगभग 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर, एंड आई हैव आस्क्ड द पर्सन फ्रॉम BMW, एंड पेट्रोल में आपको मिल जाता है लगभग 12 to 15 किलोमीटर ऑफ माइलेज। एंड ऑब्वियसली ये मैटर करता है आपके चलाने के ऊपर, अगर आप जिगजैग वे में चलाओगे या अगर आप एक डिसेंट स्पीड में नहीं चलाओगे और ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो ऑब्वियसली इसका जो माइलेज है वो ड्रॉप कर जाएगी। तो गाड़ी में जब अब मुझे क्या कर रहा है यार, एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉब्लम इन कोलकाता, यू नो, जो बस है वो कहीं कहीं से भी घुस सकता है, सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल इफ़ यू आर ड्राइविंग कार और बाइक, ओके। Let me overtake this bus first. ओके, सो जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ बस को, सो ऑब्वियसली अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँगा तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इस कार में। IRVM थोड़ा सा मुझे
थोड़ा सा छोटा लगा हालांकि, एंड RVM से अब उतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है क्योंकि आपको पीछे सीट में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, तो आपका जो विजिबिलिटी थोड़ा सा ब्लॉक कर रही है। बट ORVM में आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी मिलेगा। और अगर मैं बात करूँगा कि अगर बॉनेट की, तो बॉनेट थोड़ा सा बड़ी है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू एनी सीडान का, बट मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है क्योंकि गाड़ी का आप थोड़ा सा नीचे बैठ रहे हो ऑब्वियसली, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मुझे देखना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा झुक के देखना पड़ रहा है, ये एक छोटा सा चीज़ है, बट डेफिनेटली इट्स अ सीडान कार, सो आपको ऑब्वियसली विजिबिलिटी इतना ही मिलने वाला है चाहे आप कोई भी सीडान ले लो। सो इफ़ यू नीड अ बेटर विजिबिलिटी देन आई थिंक यू शुड गो विद द X1। I'm truly impressed with this car, man. I'm truly impressed with this car. But yes, I need to tell you that in 2023 whether it's a perfect car or not, और actually 2024 आने वाला है, तो 2024 में ये कार आप ले सकते हो कि नहीं, और कौन ले सकता है ये गाड़ी, और क्या क्या ड्रॉबैक्स है इस गाड़ी का। Obviously I have told many occasions, but now I'm gonna go back to home and I'll tell you that थोड़ा सा स्लाइड्स कंपेरिजन करेंगे इसका अदर कंपटीशन का कार से, एंड आई विल टेल यू दैट वेदर इट्स अ डील ब्रेकर कार और नॉट इन 2024। So hello guys, as you can see that I'm back at home and I'm gonna tell you कि 2024 का शुरू में आपको ये गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड इस गाड़ी का साथ साथ आपको कौन सा गाड़ी है जो मार्केट में अवेलेबल है जो इसका एकदम डायरेक्ट कंपटीशन में है। अगर आप let's take a consideration that you are looking for a premium car only and that too with a German, then there are 3 companies out there, and first one is obviously the BMW Grand Coupe 2 which I have driven already. Now another one is the Audi A4 and the third one is the Mercedes-Benz A-Class Limousine. Okay, so अगर तीनों का प्राइस बोलूँगा तो लगभग सेम ही है, लगभग 50 लाख के अंदर ही आ जाता है। So first thing first, I need to tell you that what are the key differences between 3 cars. So by this time, while I was shooting this video, I have driven the 3 of the car already. Okay, so eventually ये तीनों कार का जो रिव्यू है ये बाद में आ जाएगा। प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो and also hit the bell icon so that you will get notification if I'll upload any video in future. So yeah, so coming back to the point कि क्या क्या थोड़ा डिफरेंसेस है। अगर ये तीनों गाड़ी में क्या डिफरेंस है, सो पहला बात है अगर आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार जिसमें आपको भर के फीचर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो विद द BMW Grand Coupe which I have driven. Okay, now if you are looking for performance and a mild the seating comfort and all that, then I think you should go with the Mercedes-Benz. Okay, but अगर आपको चाहिए एक थोड़ा सा लेग स्पेस बट फीचर आप थोड़ा बहुत कम होने से भी चलेगा, then I think you should go with the Audi A4. Who can actually buy this car? Okay, so that's another question. Those who are looking for a M Sport, like अगर आपको चाहिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स सी फील चाहिए गाड़ी में, या आप ड्राइविंग ज़्यादा करना पसंद करते हो रादर सिटिंग टू द बैक सीट, देन आई पर्सनली फील कि दिस कार इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। हाँ, इस गाड़ी में थोड़ा चीज़ जो है वो आपको स्पोर्टी फील दे रहा है, जैसे गेट एम बैजिंग इन द स्टीयरिंग व्हील, देन आपको टायर में भी आपको एम बैजिंग मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको मिलता है फ्रेमलेस डोर। इसके कंपटीशन में कोई भी गाड़ी में आपको फ्रेमलेस डोर नहीं मिलता है, सो इट इज एन अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर कार। आप 3 सीरीज में भी जाओगे तो आपको फ्रेमलेस डोर नहीं मिलने वाला है। अगर लुक आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा BMW 6 सीरीज से थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो मुझे लगता है कि लुक वाइज दिस कार इज वेरी प्रोमिनेंट एंड इट इज वेरी आई कैचिंग एज वेल। सो व्हाइल आई वाज ड्राइविंग दिस कार टू द रोड्स, सो एवरीवन वाज लुकिंग एट द कार। ओके, एंड प्रिसाइजली इसका अगर कलर ऑप्शन देखोगे तो मुझे स्पेशली द ब्लू कलर जो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि दिस इज अ टेस्ट राइड व्हीकल, सो आई डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू चूज द कलर बिफोर आई ride the car, but you have an option to choose the color before you buy the car, so that's how it is. Okay, so yes, another thing I need to tell you ki obviously this car is costing around under 50 lakhs, so it is a quite humongous amount of money. So
हाँ, आप बहुत सारे यूट्यूबर ये कंप्लेन करते हैं कि इन दिस कार यू विल नॉट गेट एनी रियर व्हील ड्राइव। यस, अगर आप कंपटीशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा वो मर्सिडीज बेंज एंड इवन ऑडी में भी आपको रियर व्हील ऑप्शन नहीं मिलता है। सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ रियर व्हील ऑप्शन देन आई थिंक यू शुड गो विद द BMW 3 सीरीज और यू कैन गो विद द BMW X1 वेयर यू कैन गेट द ऑल व्हील ड्राइव। X1 का भी प्राइस लगभग अंडर 50 lakhs के अंदर आता है डिपेंडिंग ऑन द विच car you are buying, like it is a petrol variant or diesel variant. So that's all about this particular video. So if you like this video, so subscribe my channel, that is TBV India. Hit the bell icon so that you will get the earliest notification. Please share this video as much as you can with your friends and family members. So that's all about it. And yes, wear the helmet while you are riding the motorcycle and wear the seat belt while you are driving a car, and drive safely, ride safely. So that's all my end, guys. So I have to take a sweet alvida. So till then, take care, bye bye, and have blast. Bye.